Good evening, students. We are going to start today lecture number 2, topic force and laws of motion. In the first lecture, we already discussed about that the Newton's first law. Now today, in this lecture number 2, we have to discuss the points are the momentum. What is the momentum? Momentum is the product of mass and velocity. Generally, linear momentum we are denoting with the letter P. Linear momentum we are denoting with the letter P. Is a product of mass and velocity, where velocity is vector quantity, mass is a scalar one, and momentum is also vector. Newton's second laws of motion. Newton's second law explain about the force, how much force is acting, and according to him, force is directly proportional to the rate of change of momentum. क्या बोलता है वो? Force कैसा होता है? It is directly proportional to the rate of change of momentum. Rate का मतलब क्या होता है? पैसा नहीं, क्या है? Time. Change means final momentum minus initial momentum divided by time. And the force formula derivation. That derivation, force formula, that is the force equals to product of mass and acceleration. And the same formula is useful for that proof of first laws by using the second law, that is the laws of inertia. Okay. And impulse, what is the impulse? Impulse is generally repeated with the letter I. It is the product of force and time. Impulse is the product of force and time. These points just we have to cover in today's lecture. Okay, let me go one by one now. Okay, the first one, if you are finding from the picture also, the ball is hitting and all the objects are scattered. Why is it so? Because it is effects of force. Okay, now we'll discuss in the next one the momentum. Here momentum is a vector quantity. I told already. What is the momentum? Momentum is a vector quantity. Generally we are representing the linear momentum with the P. Two types of momentums are there. One is the linear one, other is the angular momentum. Very good. Circular, or we can say angular momentum. Okay, linear momentum means when the objects are moving in a straight line. Angular means some angles, they creating some angles are there. They are known as the angular momentum. But now we are discussing about the linear momentum. Okay, linear momentum generally we are denoting with the letter P, is a product of mass and velocity. Okay, you know very well what is the velocity. What is the velocity? Velocity is the rate of change of displacement. Mass is a scalar quantity, is always constant. It is never change. Then what will be the unit of momentum? Anyone can guess what will be the unit of momentum? You know what is the unit of mass? Unit of mass is kilogram. Unit of velocity, meter per second. Very good. Then you can analyze the units of momentum. The mass unit of kilogram and unit of velocity is meter per second. Means we can say the SI unit of momentum is kilogram meter per second. Understood? What is unit of momentum? Kilogram meter per second is the SI unit. Okay. Sometimes we are representing in the CGS unit also. CGS unit, what we are saying? The gram centimeter per second. Okay, this is the CGS one. This is the SI one. SI or MKS is the same. SI unit or MKS unit one is the same. This is the one CGS unit. If you are finding here, the objects are there. When they are hitting that ball, objects. The ball, if we are hitting with it very strongly, then the ball, all the objects are going to scatter. Here, if you are trying to hold the ball, what you have to do to stop, to reduce the speed of the ball? We have to take our hands with the direction of the ball. We are unable to hold the ball like this. We are able to hold? No. When the ball is coming from the from some source, then we are taking the ball and we are taking reducing the speed by holding the ball with the direction. Okay, here he holding the ball. Now he holding and he is taking the hand with this direction of the ball, and slowly speed is going to reduce. We are not able to push that ball and we are unable to hold. Okay, the same. And in that case, which ball is easy to hold you? Suppose we have the two options are there. One is the rubber ball and other is a suppose cork ball. Then which ball is easy to hold you?
rubber ball. Why is it so? Because rubber ball having the less mass. उसका मास क्या होता है, कम होता है. मास इज लेस देन मोमेंटम इज आल्सो लेस, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, लेस होगा, है ना. तो रबर बॉल का मोमेंटम भी लेस होगा. कॉर्क बॉल पकड़ने को आपको ज्यादा ताकत लगेगी, रिक्वायर बिकॉज द कॉर्क बॉल हैविंग द मैक्सिमम momentum. Okay, the momentum depends upon which factor? Two factors are there. One is mass, another is the velocity. Other is the velocity. If the mass is more, then momentum will also more. Correct. And at the same way, the ball is coming very slowly, then you can hold easily. But if ball is coming very fast, then again it is very difficult to hold the ball. Why is it so? It depends upon again velocity also. क्या है, momentum किस पे depend कर रहा है? Mass and velocity. That is, we can say directly the momentum is directly proportional to the mass also, and momentum is depends directly to the velocity also. If velocity increases, momentum also increases. Mass increases, then also momentum also increases. Understood? It depends upon the two factors. Now here, depending upon the same one, the Newton's derived the laws, second laws of motion. According to the momentums, that Newton's law is depending upon the same. It is also known as the laws of motion. Newton's laws of motion. According to him, first law we discussed. What is the first law? To change the state of inertia, we require external unbalanced force. Correct? What is our first law? First law is related with that inertia. Laws of inertia. To any objects, if suppose always in a inertial mode, to change the state of inertia, we require external unbalanced force. फर्स्ट लॉ में पढ़ा है ना अपन ने, वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा कोई खुद की जगह चेंज करता है क्या, नहीं करता है. कब करेगा, जब उसे बाहर से कोई तो एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा. और फोर्स कैसा होना चाहिए, वो अनबैलेंस. तो ही क्या करेगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारी जगह चेंज करो. अदरवाइज इट विल बी रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ द मोशन. ओके, नाउ हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड. तो फर्स्ट लॉ में क्या बताया था, सिर्फ फोर्स लग रहा है बताया था, बराबर है. कितना फोर्स लग रहा है बताया क्या, नहीं. तो वो किसी में बताया, तुम्हारे न्यूटन्स के सेकंड लॉ में. इसके हिसाब से क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स कितना हो लगेगा तुम्हारे ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, या जो भी फोर्स है, तो क्या होगा तुम्हारी, डिपेंड्स करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. दैट इज P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T. ओके, द P2 का मतलब क्या है, P2 इज नथिंग बट द फाइनल मोमेंटम. P2 का मतलब क्या है, final momentum, and P1 is known as the initial momentum. Okay, or we can write like this: P final minus P initial by time. Okay, if you are able to understand P2 P1, then also it's okay. Otherwise P2, that is final minus change का मतलब क्या है, change कहने में बदलाव. बदलाव कब आएगा, अभी कैसा है और पहले कैसा था. हाँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, वो भी करना है. वेरी गुड. नाउ हाउ वी आर राइटिंग फॉर फाइनल मोमेंटम. मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity. We know the formula. Momentum is the product of mass and velocity. And for final momentum, what we are able to write? We are able to write here the force. Force is directly proportional to the, instead of final momentum, I am able to write P2 M2 or M minus V2. Correct? What we are able to write, P2 mass into velocity. Which velocity here? Final velocity. Generally we are indicating V with the final velocity. And initial velocity, what we are write? mu. Correct? Yes or no? We are writing the V is final velocity and u is the initial velocity. Then what is the change in momentum? Mass into velocity minus mass into velocity. This V indicates which velocity? Final velocity. That's why mv is the final momentum and mu is the, and divided by our time. Okay, this is the formula. And the same way, if you are reducing the variation sign, the constant value is k, then we can write f equals to the k m, I am taking the common, v minus u divided by t. Correct it is? What I did here, I put m common here from 2 points m1 mu and mv. I put their m common, then it will be v minus u by t.
and this k value of k, by practically we observe the value of k equals to how much? 1. Okay, then that same equation we are just simply we are writing f equals to m b minus u by t. If you remember the laws of our kinematic equations or definition of acceleration, what is the definition of acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. Here also we are finding the final velocity minus initial velocity divided by time. Then that same equation we are able to write force equals to product of mass and acceleration, where force is also in vector quantity and acceleration also is in a vector quantity. Understood? This is the your Newton's second laws of motion statement as well as the derivation. What is the Newton's second law statement? Force is directly proportional to the rate of change of momentum. समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या है? क्या बोलता है? वो सिंपल है. फोर्स क्या है बोल रहा? फोर्स कैसा है? इट्स डिपेंड्स अपॉन द मोमेंटम. कौन से मोमेंटम पे? चेंज इन मोमेंटम. चेंज का मतलब क्या है? बदलाव. कौन सा बदलाव? पहले कैसा था और अब कैसा है ना? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? एंड रेट का मतलब क्या है यहाँ पे? टाइम. ओके, रेट इज नथिंग बट द टाइम. ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है. गॉट इट नाउ? वेरी क्लियर. Now we'll discuss about what is the next size, the same derivation of the formula, the same derivations. What have we proved now? That is f equals to m into a. These are the derivations we already proved. How we proved now? The f is directly to the k, or we can write directly p2 minus p1 divided by time. That things only we derived here. The f equals to k, p2 minus p1 divided by time, that is f equals to k mv minus mu divided by time, that is f equals to k m in bracket v minus u by t, that is f equals to k m and a, and where k equals to 1 we can write f equals to m into a. The same derivation is there. Okay, that is known as the derivations. Generally we are Newton's second law. What we are saying, the Newton's second law is known as the product of force, mass and acceleration also. Okay, what we are saying, the f equals to m into a. This is the final derivation for the Newton's second law. Okay, here from that same way the definition of the force and units. उसका force का unit क्या होगा? How we define the force? We discuss now the force equals to mass and acceleration. बराबर है? Force क्या निकाले अपन ने? Mass and acceleration we derive now only. Okay, then what are the MKS unit? MKS unit में क्या है? What is the unit of mass? kg is unit of mass, correct? What is the unit of acceleration? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर. यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट क्या होगा फिर तुम्हारा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये कौन सा यूनिट है तुम्हारा? एम के एस यूनिट. वो कौन सा यूनिट है पापा? एम के एस. बट on the honor of the scientist name, what we are seeing the unit of force? Unit of force is we are seeing the Newton. Force की यूनिट क्या कहते हैं अपन? न्यूटन. ऐसा यूनिट को और एम के यूनिट को क्या कहते हैं अपन? यूनिट इज नोन एज न्यूटन. एफ यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स is Newton. How we are representing with the symbolically capital N. समझ में आ गया? कैसे देखा जाए अपन? सिंबल क्या है उसका? कैपिटल N. Okay, and how it will be the converting? What is the MKS unit? Okay, what will be the CS unit then? F equals to gram centimeter per second square. This is known as CGS unit. That is centigram, centimeter, gram and second. है ना? Length we are measuring in centimeter, mass we are measuring in gram, and time we are measuring in a second. Okay, that units if you are saying that on the honor of the scientist, we are reading as a dyne also. Okay, what is the relation between the 1 Newton and 1 dyne? 1 Newton equals to 10 raised to, yes, okay, we'll prove now. Okay, if you are in confusion, we'll prove how it is. Okay, if you don't know, it is very well and good, because we are, when we are going to prove that the equations, we will come to know how it is and we are able to remember also. Okay, now here you know that one, the MKS units. Okay, that is the
CGS units. Okay, here. Okay, here I am just adding one page. Will conversions we are providing. Here suppose the N, and here suppose we don't know how much it is. Okay, but you know the units Newton. We can say right that force kilogram meter per second square, and here gram centimeter per second square, but we don't know the relations, but we know the conversions. Okay, what conversions we have to prove? The 1 kilogram equals how many grams? Agree? पता है क्या? Okay, then 1 meter equals how many centimeters? 100 centimeters, and 1 second equals to 1 second only. Correct? Second is time unit is the same. तो अभी क्या करना है देखो, तो जहां पे एक काम करो, न्यूटन्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या तो इसे डायन में कन्वर्ट करो, एज यू फील कंफर्ट. इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो जैसा आप चाहे वैसा. तो मैं क्या करता हूँ, 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन कितना है, 1 न्यूटन इतना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बराबर है. तो इसको क्या करता हूँ, 1 न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए? 1000 ग्राम. देन आई एबल टू राइट हियर 1000 ग्राम इनटू कितने मीटर है, 1 मीटर ने कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 सेंटीमीटर. करेक्ट. देन आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 100 dividing by second square. Then what I will write, 1000 into 100 gram centimeter per second square. Then it will be 10 power 5 gram centimeter per. This is the value of 1 Newton, and that is known as the gram centimeter per second square is known as the time. Got it? Therefore, we can write 1 Newton equals to 10 raised to how many 9? Got it? 1 Newton equals 10 raised to 5 9. Is it clear? Everyone understood this one? Very good. Now, the proof of first law by using the second law. What? Yeah, that's for that purpose you should know about the first law. The same equations. The force equals to what? Product of mass and acceleration. Okay, means some force is required to accelerate the body. Okay, if the A equals to 0, then what will be the force? Force क्या होगा? जब A 0 होगा तो force क्या होगा? Force also will 0. If A is 0, then F equals to m into 0, then F equals to also 0. That is, if the no acceleration, if the, means no force. बराबर है? फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है. तो यही तो न्यूटन्स का लॉ था, फर्स्ट लॉ. क्या था? लॉज ऑफ इनर्शिया. क्या था? टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हाट वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. है ना, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है. चेंज करना है इसका मतलब क्या है? उसकी पहले की वेलोसिटी में बदलाव लाना है. बदलाव ला रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन? उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? उसकी टेंडेंसी चेंज करे, इसका मतलब क्या करें? उसे अपन एक्सेलरेट करने क्या लग रहा है अपने को? फोर्स लग रहा है. तो विदाउट फोर्स बॉडी डजंट एक्सेलरेट. बिना फोर्स नहीं तो बॉडी एक्सेलरेट होगी क्या आपकी? नहीं होगी, है ना. दैट्स इंडिकेट्स फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फोर्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज मास इज एवरीवेयर कांस्टेंट. मास क्या है आपका? कांस्टेंट है. टू चेंज द एक्सेलरेशन और टू एक्सेलरेट द बॉडी वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. फोर्स भी कैसा लगेगा? बैलेंस फोर्स से बॉडी एक्सेलरेट होगी क्या? नहीं. कैसा फोर्स लगेगा आपको? अनबैलेंस फोर्स लगेगा. कैसा देना पड़ेगा आपको? एक्सटर्नल, है ना. एक्सटर्नल यानी बाहर से आपको फोर्स देना पड़ रहा है. जब क्या होगी? आपकी बॉडी विल मूव इन बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी. एक्सेलरेट का मतलब क्या है? स्पीड बढ़ना ही एक्सेलरेशन है क्या? नहीं. स्पीड कम होना भी एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ना भी एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन चेंज होना भी क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन. बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर्स. वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो है ही है, एज वेल एज डायरेक्शन भी है ना. तो डायरेक्शन चेंज होता है तो भी क्या होती है? वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, बराबर. बिकॉज ऑफ दैट दैट इज द फर्स्ट लॉज ऑफ इनर्शिया इज प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट इज द सेकंड लॉ एंड द फर्स्ट लॉ. द फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर टू एक्सेलरेट द एनी ऑब्जेक्ट. दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और वी कैन से लॉज ऑफ इनर्शिया. समझ में आ गया? ऐसा फोर्स लग रहा है उसको अनबैलेंस फोर्स लगता है. नाउ relation between the momentum and impulse, again it is very simple.
द मोमेंटम you know. Now we learn momentum equals what? Product of mass and velocity. But what is the impulse? Impulse क्या है? Impulse क्या है? एक स्लाइड बाकी है. Okay, sorry. Very good. Impulse. Okay, यहाँ पे जाए impulse आपको. Very good. Very clever. तो यहाँ पे क्या है? Impulse क्या है? Impulse यानी is related to momentum only. Impulse is a product of F into T. Impulse क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम. जैसे कि एक आधा ऑब्जेक्ट सपोज ऊपर से गिर रहा है ना, तो एक आधा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से, चलो ये एग होगा समझो, इमेजिन करेंगे, है ना, ये एग है, अंडा है, जो भी है ना, ये ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, स्पीडली गिरेगा तो क्या हो जाएगा? पचक गिर जाएगा, है ना. और वही एक समझो धीरे धीरे पैराशूट में से धीरे 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 आए तो क्या होगा? तो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएंगी, उसको इम्पैक्ट होगा क्या? नहीं होगा, है ना. तो इस पे क्या है देखो, यहाँ पे बताया, देखो फर्स्ट लॉ क्या है तुम्हारा? वी एफ, वी यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी. आप पता है इक्वेशन. एंड इट किल्स यू द फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू द चेंज इन वेलोसिटी. का मतलब भी क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज द एक्सेलरेशन. तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. अभी समझो आपको क्या करना है, दीवार पे खिला मारना है ना. सुना होगा आपने शायद मेरे ख्याल से, है ना, सौ सोनार की तो एक इसकी लोहार की. क्यों ऐसा होता है? इंपल्स उसका ज्यादा होता है, बराबर है कि नहीं? सोनार क्या करता है? टुक 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 मारता है ऐसा. लोहार क्या करता है? क्यों? उसका इंपल्स ज्यादा होता है. इंपल्स किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके उसके फोर्स पे और टाइम पे, है ना. तो देखेगा आपने लोहार को मारते समय फोर्स, लोहार कैसा मारता है? उठा के पूरा गोल घुमा के हथौड़ा मारता है, बराबर है. सोनार जगह पे टुक 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 करता है ना. तो उसका क्या है? इंपल्स ज्यादा है. किस इंपल्स के लिए क्या लगेगा तुम्हारे को? फैक्टर कौन सा लगेगा तुम्हारा? फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो और टाइम, है ना. यानी वही फोर्स कितने टाइम में अप्लाई कर रहे हो. टाइम ज्यादा तो भी क्या होगा? तुम्हारा इंपल्स ज्यादा हो जाएगा. गॉट इट. तो ये तुम्हारा रिलेशन है. तो कैसा निकालोगे? अभी इसमें से आपको डिराइव करना था वो रिलेशन. ओके, तो रिलेशन क्या है तुम्हारा? अभी डिराइव करके दिखाता हूं मैं आपको. तो यहाँ पे क्या है? मोमेंटम पता है आपको. मोमेंटम क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो इंपल्स क्या बताया मैंने? इंपल्स इक्वल्स टू, सॉरी, आई इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम. इंपल्स क्या है तुम्हारा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. देखो अभी दोनों में रिलेशन क्या है ना. तो मोमेंटम क्या है? सिंगल क्वांटिटी है ना. ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको. क्या बोल सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज द इंपल्स. करेक्ट है कि नहीं? ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन? चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स, है ना. कोई भी इसमें क्या हो रहा है? तुम्हारे मोमेंटम में बदलाव आ रहा है, वही क्या है तुम्हारा? इंपल्स है. देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है अपना? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? देखो तो नहीं, अब सॉरी, सेकंड लॉ करें. वेरी गुड. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? एफ इक्वल्स टू क्या है? एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाय टी इंटू टी, बराबर है क्या? तो सपोज ये टी और ये टी क्या हो जाएगा? कैंसल. तो बचा क्या है यहां पर? एम वी माइनस एम यू बच गया, बराबर है. तो एम वी का मतलब क्या है? ये तुम्हारा कौन सा तुम्हारा मोमेंटम है? फाइनल मोमेंटम. और ये क्या है तुम्हारा? इनिशियल मोमेंटम, बराबर है. तो इसका मतलब इंपल्स क्या होगा तुम्हारा? इंपल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम इंपल्स क्या होगा तुम्हारा? दो मोमेंटम में का चेंज है वो क्या है तुम्हारा? इंपल्स है. समझ में आ गया? दो मोमेंटम का चेंज यानी क्या? दो वो क्या है तुम्हारा? इंपल्स. सिंपली इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. तो यूनिट क्या होगा? इंपल्स का यूनिट और मोमेंटम का यूनिट सेम होगा. चेंज होगा क्या उसमें? नहीं होगा. बिकॉज द डिफरेंस ऑफ मोमेंटम ओनली, डिफरेंस ऑफ मोमेंटम अगेन विल गेट द resultant momentum only. That is the units of change in momentum is known as the impulse. is a product of force and. और हमेशा क्या करते हैं अपन? impulse का मोमेंट यूनिट जो है न्यूटन इंटू सेकंड ऐसा भी लिखते हैं अपन. व्हाट वी आर राइटिंग? न्यूटन इंटू सेकंड. दिस इज द यूनिट ऑफ impulse. ये क्या है तुम्हारा? यूनिट है उसका. समझे क्या? मोमेंटम क्या है? जस्ट ओनली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. पहले का मोमेंटम क्या है और बाद में मोमेंटम क्या है, दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है तुम्हारा? इंपल्स है. समझे? जैसे कि अभी मैं पहले का एग्जांपल देखो. कौन सा? वो बॉल वाला कैच पकड़ रहा था. उसमें इंपल्स क्या होगा आपको निकालना है. पहले बॉल आ रहा था स्पीड से,
हाँ, फील्डर ने क्या करा, बॉल को पकड़ लिया है, फिर क्या करा, धीरे धीरे बॉल की स्पीड कम हो गई, बॉल हाथ में आ गया, होल्ड कर लिया और कैच पकड़ ली उसने, बराबर है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ वहां पर, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ वो कंडीशन में, बॉल पकड़ने के बाद फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, जीरो हो गया, वेलोसिटी रुक गई बॉल की, फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, है ना। इनिशियल मोमेंटम क्या था, बॉल की स्पीड थी, बॉल का मास था, वो मोमेंटम था, समझो कुछ तो भी था, तो जीरो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, जीरो माइनस इनिशियल जो भी था उसका मास, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो वो क्या है, दोनों का डिफरेंस यानी क्या है तुम्हारा, वो इम्पल्स है, समझे क्या है, हाँ, माइनस एम इंटू वी, जो उसकी स्पीड जो आ रही थी वो हो गया तुम्हारा इम्पल्स, दोनों का मोमेंटम का डिफरेंस, गॉट इट। तो नेक्स्ट वाली देखिए, फिर क्वेश्चंस आर गिवन देयर, we'll discuss the questions here. Which of the balanced or unbalanced force can change the state of the body? It's very simple. कौन सा है, अनबैलेंस, बैलेंस फोर्स से तो कुछ काम ही नहीं होगा, पता है अपने को, तो कौन से भी काम के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है अपने को, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, बी, अनबैलेंस फोर्स, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन, देखो, what is the measures of inertia of the bodies in linear momentum? linear momentum का inertia किस पे डिपेंड करता है, गलत हो गया, हाँ linear momentum, हाँ linear motion, sorry, what is the measure the inertia of the body in linear motion? तो linear motion का मतलब क्या, linear momentum, linear motion यानी सीधा जा रहा है ना, तो inertia क्या है तुम्हारा, inertia is directly proportional to which factor, mass, बराबर है, मास इंक्रीजेस, इनर्शिया इंक्रीजेस, और किसी को फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है, तो मास दिया है क्या यहाँ पे, हाँ दिया है, तो राइट कर देना है इसे, गॉट इट। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनर्शिया क्या होता है, अभी सपोज एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकते हो, बराबर है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऐसे मुझे पहाड़ है, पहाड़ का आपको डायरेक्शन चेंज करना है, कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो, इसका मतलब क्यों, उसका इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है इसका मतलब उसका मास ज्यादा है। अर्थ घूम रही है, अर्थ को रोक सकते हो आप, क्यों, अर्थ का मास ज्यादा है ना। तो जो हेवी बॉडी को आप रोक भी नहीं सकते इजीली, और जैसे तुम्हारा बॉल का एग्जांपल था, कॉर्क बॉल जो है रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, प्लास्टिक बॉल रोकना थोड़ा सा आसान है, क्यों, प्लास्टिक बॉल का मास कम है, इसका मतलब उसका इनर्शिया कम है, बराबर है, कॉर्क बॉल का इनर्शिया ज्यादा है ना। तो उसको क्या करना है, उसके डायरेक्शन, इनर्शिया का मतलब क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन रेजिस्ट द सेम स्टेट ऑफ द मोशन, जो स्टेट में वही स्टेट में रहना चाहती है। स्पीड पे कौन से डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, स्पीड चलो कोई भी ऑब्जेक्ट, अब उसमें इनर्शिया कितने लॉज है, 3 है, टू चेंज द डायरेक्शन, है ना, तो डायरेक्शन चेंज करना है, एक ऑब्जेक्ट है, अभी सपोज ये चलो ये डोर है, डोर को क्या करना है, आपको डायरेक्शन चेंज करना है, एक स्टेबल ऑब्जेक्ट है, कोई तुम्हारा बैग है समझो, बैग का डायरेक्शन चेंज करना है, उसकी स्पीड जरूरी है ना, वेरी गुड, इन्होंने करके भी देखा, देखो, है ना। तो वहां पे क्या है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोई स्पीड की जरूरत है नहीं, सिर्फ मास है, बहुत हेवी बैग रहती थी तो बहुत ताकत लगती थी इसको चेंज करने के लिए, बराबर है कि नहीं, तो वहां पे क्या है, डिपेंड किस पे करेगा, तुम्हारे मास पे, बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको पुश, उसकी वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन, इनर्शिया पहले रेस्ट में है, उसे मोशन में लाने के लिए भी क्या लगेगा आपको, वो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब क्या, उसका इनर्शिया भी क्या है, उसका ज्यादा है, बड़े जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा, जिसका मास कम इनर्शिया भी कम, इनर्शिया इज डायरेक्टली टू द मास, दूसरे किसी पे डिपेंड नहीं करता है, गॉट इट। देखिए द नेक्स्ट वन हियर, mass of the body is quadruple and what happen is the accelerations under the given force। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन समझ में आया आपको, बी हो गया क्या, क्यों होगा बी, ठुका मारा, वेरी गुड, तो ऐसा मारना है कि आपने एग्जाम में, यानी 4 गुना, है ना। तो ये देखो, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, देखो मास क्या है तुम्हारा ऑफ द बॉडी क्वाड्रुपल्स, व्हाट हैपन द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ रहा है, अंडर द गिवन फोर्स, फोर्स सेम है आपके पास, फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये पता है आपको, पर अभी हो रहा क्या है, देखो फोर्स उतना ही है, फोर्स चेंज हो रहा है क्या, पर उसका मास चेंज हो गया, मास कितना हो गया है तुम्हारा, 4 गुना बढ़ गया है, तो मास क्या होगा, 4 गुना
कम होगा। देखो फोर्स क्या है तुम्हारा, मास क्या हो गया तुम्हारा 4m हो गया, तो ए शुड बी क्या होना चाहिए, जब तुम्हारा आंसर तुम्हारा क्या आना चाहिए, तुम्हारा m इंटू ए आना चाहिए, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 4 करता हूँ, तो ये क्या होगा 4 और 4 कैंसिल हो गए, तो मिलेगा मुझे क्या, तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा ये, बराबर है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना लगेगा मुझे, a बाय 4 लगेगा, है ना। एक्सेलरेशन a बाय 4 हुआ तो मुझे उतना ही फोर्स मिलेगा, बराबर है ना। तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा, इनका थुका क्या था, सही था, बराबर है कि नहीं। हाँ देखिए द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम of the body, a toy car of mass is given 300 grams moving speed of 18 किलोमीटर पर आवर। देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, आपको क्या निकालना है, मोमेंटम। फॉर्मूला याद होगा मेरे ख्याल से, क्या है फॉर्मूला मोमेंटम का, बोलिए, मास इनटू वेलोसिटी, वेरी गुड। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बट हियर दे गिवन द यूनिट्स इन सीजीएस यूनिट्स। यहाँ पे क्या ग्राम, इसमें क्या दिया है, ग्राम दिया है, और इसमें क्या दिया, किलोमीटर पर आवर दिया है। आपने स्टैंडर्ड यूनिट दिया है कि उसने नहीं, तो वी नीड टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड बाय 1000 कर, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम में हो जाएगा। तो कितने किलोग्राम आ गए ये 0.3 क्या, तो मास कितना आ गया आपका 0.3। ये किलोमीटर पर सेकंड दिया, सॉरी किलोमीटर पर आवर दिया है। इसको क्या करना पड़ेगा आपने को, 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, है ना। तो 18 बचे कौन 5, तो वेलोसिटी क्या हो गई आपकी 5 मीटर पर सेकंड, सही है। तो आपको निकालना है मोमेंटम, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो क्या है मोमेंटम P इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 3 जा 15, यूनिट क्या आएगा उसका किलोग्राम मीटर पर। ऑप्शन है क्या, ढूंढना है अपने को, है तो अपना सही है, नहीं तो फिर इसका तो भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन है क्या है, समझ में आ गया। गुड। द नेक्स्ट वन, a force produces an acceleration of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो एक्सेलरेशन दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है ना। तो जो दिया है ऊपर लिख लेने का अपन, ए कितना दिया है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडीज ऑफ मास इज अगेन गिवन इन ग्राम। कितना दिया है आपको 20 ग्राम। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट दे नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है क्या अपने को, नहीं, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर दिया है तो कितने हो गया मीटर, कितने हो गया वो 5, अरे भाई 500 होगा क्या, डिवाइड, वी नीड टू डिवाइड बाय 100 ना। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, देन वी नीड टू डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपका a इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होगा आपका एक्सेलरेशन। गॉट इट। मास क्या होगा ग्राम में दिया है, क्या होना है आपको किलोग्राम में होना है, अगेन वी नीड टू डिवाइड बाय 1000, देन मास इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। गॉट इट। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, the force F equals to 5 divided by 100 into 20 divided by 1000। तो इसको ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल, 5 टू 10, 10 के साथ ये 10 नीचे कैंसिल, बचे कौन 1000, 10⁻³ बराबर है। यूनिट क्या आएगा इसका न्यूटन। ऑप्शन में दिया है क्या, दिया है 1 इंटू, इसका मतलब वही है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है तुम्हारा बी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज गिवन 10 किलोग्राम, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, गुड। इट इज फाउंड 10 किलोग्राम इज फाउंड डबल इट्स द वेलोसिटी इन 8 सेकंड। तो क्या हो रहा है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या यू निकालना है आपको। क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, इजी क्वेश्चन है क्या ये, नहीं, बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया है। देखो उन्होंने, तो अगर क्वेश्चन समझ आ गया आपको, देखो और फोर्स ऑफ, मुझे समझा आपको पहले फोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, मास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, ऐसा लगा कि क्वेश्चन बहुत इजी समझा आपने, है ना, वैसा नहीं दिया उसने। देखो तो क्या बताया, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स दिया आपका 20 न्यूटन दिया है, एफ कितना दिया है आपको 20 न्यूटन, मास कितना दिया है 10 किलोग्राम, इज
इज फाउंड टू बी डबल इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 2 गुना बढ़ गई है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, u थी, बराबर है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 2u हो गई, है ना। कब कितने में हो गई, टाइम कितना लगा उसको होने के लिए, 8 सेकंड लगा, है ना। तो फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको क्या करना है, इसका u निकालना है, ये आपको क्वेश्चन है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो अभी ऑप्शंस देखना है अपने को। तो ऑप्शंस में आपको सीधा सीधा समझ में आया, 2 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्या है तुम्हारा, इसका यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन, ये आंसर होगा नहीं। ये क्या है, डिस्टेंस, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। बचे कितने अभी तुम्हारे, दोनों में आपको सेलेक्ट करना है आंसर्स, है ना। सेलेक्ट करना है यानी निकालना है, सेलेक्ट करना नहीं है। तो कैसे निकालोगे, देखो अभी। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, करेक्ट है। तो फोर्स कितना दिया है उसने, देखो 20, मास कितना है 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर, एक्सेलरेशन कितना गया आपका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन आपको पता है, अभी अपने कंडीशंस दिया है उसने, कंडीशंस क्या है दिया है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, बराबर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है आपका, 2 है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 2u माइनस यू, और टाइम कितना दिया आपको, 8 दिया है, बराबर। टाइम कितना दिया, 8 दिया है ना। तो 8 टू जा कितना हो गया, 16 इक्वल्स टू u। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, 16 मीटर पर सेकंड, जिसे इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होगा तुम्हारा u। फाइनल वेलोसिटी पूछता था तो वो भी निकाल सकते थे अपन। फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, डबल ऑफ 16, 32, है ना। तो इनिशियल क्या होगा तुम्हारा, और सपोज फाइनल पूछता था, ये क्या है, फाइनल कितना था 2u, है ना। ये क्या है तुम्हारा 2u, 16 टू 32, समझ में आ गया। द नेक्स्ट वन देखिए, what is the percentage change in the momentum of the body both its mass and velocity is double। अरे बाप रे, चेंज इन परसेंटेज निकालना है, दोनों भी डबल हो गए, वो सिंपल है ना। तो क्या है मोमेंटम का फॉर्मूला, क्या है, मास इनटू, ये इनिशियल वाला है, पहला है अपना, है ना। इस क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो। अभी नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो मास डबल हो गया और वेलोसिटी भी डबल हो गई, 2m इंटू 2v दैट इज 4m इंटू v, दैट इज कितना होगा 4 इंटू पी। सेकंड कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन बराबर है। तो सेकंड कंडीशन में कितना हो गया, मोमेंटम कितना है आपका 4p। तो चेंज, चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज कितना हो रहा है आपका, चेंज इक्वल्स टू 4p माइनस p दैट इज 3p, है ना। अब वो परसेंटेज में लिखना है। सपोज पहला मोमेंटम आपका 100 होगा, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा 300, है ना। इफ p इक्वल्स टू 100, परसेंटेज निकालते हैं ना, तो फिर 3p कितना होगा, 300 से चेंज आ गया आपका, कितना आ गया चेंज, चेंज विल बी 300%, परसेंट निकालो बोले थे ना। हाँ परसेंटेज पूछा ना, परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज कितना आएगा आपका, चेंज कितना आएगा, ये बोलिए कौन से 2 कॉमन लेके, हाँ वेरी गुड, 2m इंटू 2v, 2 टू जा 4, 4m इंटू v। तो m इंटू v को क्या बोलेंगे अपन, ये आपका इनिशियल है, पहली कंडीशन, बराबर है। 2p और है 4p1 आ गया, सेकंड कंडीशन वाला। चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज है आपका, बराबर है। 4p1 माइनस 4p1 आ गया, p1 की तुम्हारा 100 था, तो 3p1 कितना होगा तुम्हारा 300, ये आपका परसेंटेज हो गया, समझे। हाँ बोलिए 4mv, ओके, 2 टू जा 2 और 2 कितना हो गया, तो 4 लिख दिया मैंने, m इंटू एज इट इज लिख दिया। अरे भाई ऐसे कैसे कॉमन ले गए आप, हाँ सब्ट्रैक्शन थोड़ी हो रहा वहां पर, है ना। सब्ट्रैक्शन में कॉमन ले गए अपन, हियर मल्टीप्लाइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग ना, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज अ 4। देखिए द नेक्स्ट वन, व्हाई आर द व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स प्रोवाइड द मड गार्ड। अरे ये क्या सिंपल क्वेश्चन है, मड गार्ड यहाँ पे जो होता है ना, देखो इस पे दिखाया है, पिक्चर भी दिखाया है इसमें, ये क्या है, इसमें पानी इस पे आंग पे आ रहा है पीछे से, है ना। मड गार्ड यानी पीछे का, मड यानी मट्ठी कीचड़, गार्ड नहीं आने के लिए लगाते हैं,
है ना। तो क्या है, जब तुम्हारी व्हील जब घूमता है साइकिल का, तो क्या होता है, तुम्हारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में मड क्या है, तो उस पर आता है। कैसा मड कैसा आएगा आपका, टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी जो टायर को चिपक के ऊपर आता है ना, इट विल फ्लाइंग ऑफ विद द टेंजेंशियल डायरेक्शन। आ रहा है तो किधर आएगा, इसके आंख पे गिरेगा पूरा मड, अब दिखाया उन्होंने पिक्चर में। तो ये नहीं आना, इसलिए क्या लगाते हो, वो मडगार लगाते हैं। समझ में आ गया, हाँ, लिख सकते हो फिर इसका आंसर आप। गुड। ये क्या है तुम्हारा, उसका रोटेशन है, और ये क्या है तुम्हारा, मड है ना। मड आ रहा था, मड है ना, चिक्कल है ना, कीचड़। ये एक्सपीरियंस शायद आपको भी आया होगा, शायद मेरे ख्याल से रेनी सीजन में साइकिल गिर कर चलाते होंगे, उसको सपोज मडगार नहीं होगा तो पूरा पीछे नकाश आ जाता है ना, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास ऑफ 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन का मतलब कितना होता है, 1000 किलोग्राम। कितना होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, U 0 है, एक्सलेट्स टू द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया है, इनिशियल स्पीड 0 थी, इसका मतलब ये कौन सी स्पीड है आपकी, फाइनल है, और टाइम कितना दिया है आपको, 20 सेकंड, है ना। देन मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 80 सेकंड, तो फिर वही स्पीड से चला कितने सेकंड पे, 80 सेकंड तक चला है ना। देन एंड इट्स द ब्रॉट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, तो फिर रुकने के लिए कितना लगा उसे टाइम, 10 सेकंड लगाया। बोले तो पहले गाड़ी तुम्हारी रुकी वाली थी, रुकी वाली गाड़ी को तुमने क्या करा, स्पीड में लाया, स्पीड में कब तक चलाया, 80 सेकंड तक चलाया, फिर बाद में फिर ब्रेक लगाना चालू करा। अब जब ब्रेक लगाया तो रुकने को भी टाइम कितना लगा उसको, 10 सेकंड लगा। 10 सेकंड में आपकी गाड़ी जो भी है समझो, बाइसिकल है, गाड़ी है, जो भी हो, कार है, सॉरी कार, फिर बाद में वो रुक गई आपकी। समझ में आया क्वेश्चन। तो अभी पूछ रहा क्या है, देखो, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार फ्रॉम 0 to 20 सेकंड। तो यहाँ पे 0 से 20 सेकंड में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स निकालना है ना। तो फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो कार का मास कितना है तुम्हारा, 1000 है, एक्सेलरेट कितना हो रहा है तुम्हारा, लास्ट से पहले 20 सेकंड में, 20 सेकंड कहाँ है तुम्हारे, 20 सेकंड में क्या है, द 0 एंड एक्सेलरेट स्पीड 72 किलोमीटर इन 20 सेकंड। तो हाँ, तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी मास डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी को क्या कन्वर्ट करने का पड़ेगा आपको, 5/18, 18 फोर्जा कितना आ गया, 20 है, बराबर। तो फाइनल स्पीड कितनी आई, 20 - 0 डिवाइड बाय टाइम कितना है, 20, सही है क्या, 20 तो फोर्स कितना आ गया, 1000 न्यूटन। समझे, समझेगा ये, फिर से बताऊं, हाँ देखिए। तो फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो फोर्स कितना लग रहा है कार को, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए, तो पहले की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, फिर बाद में क्या होगी, 20 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई तुम्हारी, 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में अपन कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, है ना। 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कितना हो गया, 18 4 जा 4 5 जा, तो वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, 20 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, A इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 20, इनिशियल क्या थी 0, बी डिवाइड बाय टाइम 20 सेकंड। तो 20 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आंसर कितना होगा, 1000 न्यूटन। गॉट इट, समझे, गुड। अभी नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार फ्रॉम 20 to 100 सेकंड। आप देखो क्या फोर्स आएगा, हा? नहीं रहेगा 1000 न्यूटन, क्यों रहेगा 1000 न्यूटन, क्वेश्चन ही पूछे नहीं थे उन्होंने, देखिए। तो यहाँ पे 1000 न्यूटन क्यों नहीं रहेगा, इनके आंसर का जवाब देंगे अपन। क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, देखो थोड़ा लॉजिक लगाना है आपको। देखो क्या कहते हैं, देखो एंड द नेक्स्ट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 80 सेकंड। बाद में वेलोसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज है क्या, नहीं है, है ना। तो 20 तक उसकी ये था, लेकिन बाद में वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या है तुम्हारी, सेम है। तो मास उसका रहने दो, एफ कितना है तुम्हारा
मास इंटू एक्सेलरेशन 1000, तो पहले की वेलोसिटी भी 20 और माइनस के बाद में की वेलोसिटी भी क्या है आपकी 20 है। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, चेंज हो रही है वेलोसिटी, चेंज हो रही है क्या, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका यहाँ पर 0, बराबर है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 0 विथ एनी थिंग्स, व्हाट विल बी द आंसर, 0 न्यूटन। 0 माइनस 0, 20 माइनस 20 0, 0 बाय 20 अगेन 0, 0 बाय 1000 अगेन 0, है ना। इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 0 विद एनी नंबर, द विल गेट रिजल्ट विल बी द अगेन 0। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 0 विद एनी नंबर, रिजल्ट विल बी गेट अगेन 0। समझे क्या, हाँ, डायरेक्ट आंसर निकालना नहीं, करना है सॉल्व आपको, है ना। गड़बड़ में कभी कभी बोल देते आप, गलत होगा है 1000 बोल दे, है ना, तो वैसा नहीं, सॉल्व करना है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है तुम्हारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्या, एक्सेलरेशन 0 है यार, आपका फाइनल वेलोसिटी वही है, इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, डिफरेंस क्या हो गया उसका 0। ठीक है, तो क्या है देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 20 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, क्या बोल रहा हूँ, देखो 20 से लेके 80 तक, बराबर है ना। तो वहां से लेके पहले से चालू कर दिया, 20 से लेके तो 80 तक कर रहा है ना, तो 100 तक कर रहा है ना। तो ये इफ देन मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 80 सेकंड, तो 20 से गई 80 तक गई, तो 100 तक क्या गई, उसकी स्पीड क्या हो गई, सेम हो गई। तो चेंज आ रहा है कोई वेलोसिटी में, नहीं आ रहा है, अब सेम पोजीशन सेम स्पीड से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है, तो इसका मतलब डिफरेंस क्या हो गया उसका 0 हो गया, है ना। देखिए अभी देखो, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्स फ्रॉम द 100 टू 110 सेकंड, अभी 100 से क्या जा रही है तुम्हारी 110 सेकंड में, लास्ट किस मूवमेंट में जा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी आपकी रुक रही है ना। तो मास यहाँ पे कितना है आपका, सेम फॉर्मूला है 1000, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसमें, यहाँ पे फाइनली रुक रहा है, इनिशियल कितना है 20 है, बराबर है, यहाँ पे 20 है ना। 0 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम कितना है 10 सेकंड, है ना, सही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल की थी 20 थी, रुकने को टाइम कितना लग रहा 10 सेकंड, तो ये इसके साथ 0 के साथ ये 0 कैंसिल, 1000 मल्टीप्लाइड बाय -2 यानी कितना -2000, माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन, माइनस का मतलब क्या होता है, तुम्हारा दिखाता है सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है ना। तो वहां पे उसकी रेस्ट आएगा ना, देखो क्या हो रहा है, नेक्स्ट सेकंड क्या हो रहा है, यहाँ पे रेस्ट पे आ रहा है, रेस्ट का मतलब क्या हो जा रहा है, आपकी कार रुक जा रही है, कार क्या हो रही है, रुक रही है ना, पहले चालू हो गई, स्पीड पकड़ने को 20 सेकंड लगे, 20 सेकंड के बाद में फिर और 80 सेकंड तक, बोलते 100 सेकंड तक वही स्पीड में चली, फिर ब्रेक लगाया, फिर 10 सेकंड के बाद में गाड़ी आपकी रुक गई, कितना देर गाड़ी चली आपकी, 110 सेकंड गाड़ी चली, 110 सेकंड गाड़ी चली, समझे, क्वेश्चन को समझ में आया क्या। आप देखो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द कार्स इन द एंटायर जर्नी, तो पूरे जर्नी में कितना डिस्टेंस गाड़ी ने आपके कवर किया वो निकालना है अभी, तभी स्टार्टिंग से, है ना। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम, तीन डिस्टेंस, तीन यहाँ पे देखो कैसे आ रहे हैं, पहले तो पहला d1 प्लस d2 प्लस d3, ये होगा, है ना डिस्टेंस। तो पहले क्या हो रहा था तुम्हारा, स्पीड 0 से लेके 20 तक आने के लिए कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना, फिर बाद में 0 से लेके 80 में कर लिया, फिर 80 से लेके, है ना। आप सिंपल निकालना है तो ग्राफ निकाल दो, एक ग्राफ निकाल दो, है ना, तो कैसा हो रहा है आपको समझ में आएगा। यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे 0 से लेके कितने टाइम में 20 सेकंड पे, 20 में कितना है समझो, यहाँ पे 20 करो, यहाँ पे 100 करो, यहाँ पे 110 करो, समझे। तो कितना है तुम्हारा, 0 से गाड़ी स्टार्ट हो गई आपकी, तो 20 सेकंड में कहाँ तक आई, 20 तक गई, बराबर है। तो यहाँ से आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, यहाँ पे आई 20 सेकंड में, फिर यहाँ तक गई, फिर बाद में यहाँ पे ब्रेक लगना चालू हो गया, फिर यहाँ पे रुक गई। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, वी आर फाइंडिंग द एरिया, एरिया निकालोगे ना, तो एरिया निकालो, देखो तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ये यहाँ पे कितना रेक्टेंगल बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, ये डिस्टेंस 80 डिवाइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 80 प्लस
100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका 220 है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 नहीं 20 है, बराबर है, ये v है आपका, और ये क्या है तुम्हारा टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन एरिया निकालते तो क्या मिलता है अपने को, हाँ डिस्टेंस। तो फिर ये क्या करता है 2 और ये 2 कैंसिल, तो कितना हो गया तुम्हारा 80 प्लस 100 सॉरी 180 और मल्टीप्लाई पे कितना है तुम्हारा 10 क्या 10 1800 मीटर, समझे, बोलिए 100 प्लस 80 कितना हो गया, हाँ राइट 110 आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना आएगा 110 आएगा, तो 110 यानी कितना होगा यहाँ पे, गलत हो गया फिर मेरा ये, है ना, क्योंकि पर सम ऑफ द पैरेलल पर 1/2 वेरी गुड इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल डिस्टेंस कितना है 80 प्लस 110 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20, ये फॉर्मूला है एरिया यानी डिस्टेंस आएगा, बराबर है। तो अभी इसके साथ ये दो कैंसिल, तो कितना आ गया तुम्हारा 190 है ना, 1900 मीटर, समझ में आ गया, हाँ व्हाट इट नाउ क्लियर, हाँ वेरी गुड, चलो अच्छा ध्यान है इसका मतलब आपका, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है आपका 110, मैंने गलती से क्या करा था 100 किया था, है ना, ऐसा ध्यान देना जरूरी है, वेरी गुड। तो चारों क्वेश्चन के आंसर हो गए क्या आपने, हो गए। तो नेक्स्ट वन समरी, समरी में क्या पढ़े अपन आज लेसन में, जस्ट वी डिस्कस टुडे अबाउट दैट मोमेंटम, है ना, मोमेंटम पढ़े, मोमेंटम क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। न्यूटन सेकंड लॉ देखे, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है तुम्हारा, फोर्स डायरेक्ट टू प्रोडक्ट चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज m इंटू ए। रिलेशन देखिए फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का और फर्स्ट लॉ का, है ना। और क्या देखा अपन ने आज, इम्पल्स देखे, इम्पल्स क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, है ना, और उस पर न्यूमेरिकल्स देखे, इतना ही देखे ना। क्या है इसमें मोमेंटम का फॉर्मूला, इसकी यूनिट्स भी देखे, मोमेंटम क्या है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इम्पल्स क्या है, क्या है तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम क्या है, इतना ही अपन आज लेसन में देख ले। कोई डाउट है आज के टॉपिक में, और कुछ है क्या अपने को, आप होमवर्क देखिए, आपको यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 10 एनसीईआरटी बुक्स, तो आपके पास शायद होगा, आपको सॉल्व करना है, ओके सॉल्व करना है, और कोई भी डिफिकल्टी आती है कोई भी डाउट्स आते हैं तो मुझे आपको पूछना है, ओके। बाय दिस वे we end up the today's lecture. If anyone having the doubts in your homework also, you can ask me anytime, okay. You are the 3 new members are there. If you are facing any time any difficulty in before topic also, you can ask anytime, okay. Shall we end the today's session, okay, thank you.